If you have your Bibles, please come with me to Ephesians chapter 1, verse 22 and 23. अगर आपके पास शास्त्र है तो कृपया करके मेरे साथ आइए इफिसियों का पहला अध्याय 22 और 23वां वचन। Now, what I am going to share today is being connected to God through the church. और आज जो मैं प्रचार करने वाला हूँ वो यह है कि हमें परमेश्वर से जुड़े रहना है कलीसिया के द्वारा। So let's read that verse. तो आइए हम ये पढ़े। It says there, and God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. इफिसियों का पहला अध्याय 22 और 23वां वचन। और सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया कि यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। Paul is writing this letter to the church in Ephesus. पौलुस ये पत्र लिख रहा है एफिसियस के कलीसिया को। He is writing from a prison in Rome. वो रोम में एक जेल में थे। He is not writing to any church building or some property or some resources. वो कोई चर्च के इमारत या ऐसे कोई बिल्डिंग को नहीं लिख रहा है। Or sometimes we say this church is this property and all. कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं ना कि ये चर्च का प्रॉपर्टी है या जमीन है। So Paul is not writing to a property or the church's property or a building. तो पौलुस किसी बिल्डिंग को नहीं लिख रहा है, किसी इमारत को नहीं लिख रहा है या किसी जमीन जायदाद जो चर्च के है उसको नहीं लिख रहा है। But he is writing to the believers in Ephesus. लेकिन वो जो विश्वासी है एफिसस में उनके लिए यह पत्र लिख रहे हैं। And they are the church. और वो ही कलीसिया है। The people are the church. लोग कलीसिया है। The church started in Ephesus, you can find it in Acts from 12 people actually. अगर आप देखेंगे तो कलीसिया का शुरुआत हुई प्रेरित के कार्य में 12 लोगों के साथ। In Ephesian church. इफिसियों की कलीसिया। If you read, I think Acts chapter 19, if I am not. अगर आप आए प्रेरित के कार्य के 19वां अध्याय में, if you see verse 10, it talks about 7 to the 2 years. Sorry. So if you read that portion, you find that Paul and on his missionary journey arrives there and meet with these 12 people. और अगर आप प्रेरित के कार्य का 19वां अध्याय देखेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि पौलुस जो है वहां पे पहुंच के 12 लोगों से मिलते हैं। And they were actually the disciples of John. और ये थे यूहन्ना के शिष्य। Okay. And then they were baptized in the Holy Spirit. फिर उनका बपतिस्मा हो जाता है पवित्र आत्मा में। And they started speaking in tongues. और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। And the church started in Ephesus. और इसी तरह से कलीसिया की शुरुआत हुई एफिसस में। And these 12 people increased and grew. और फिर ये जो 12 लोग हैं वो बढ़ने लगे। That is in verse 7 it says. आपको मिल जाएगा यह प्रेरित के कार्य का 19वां अध्याय में और 7वां वचन में। It says they were all about 12 people. कि ये सब लगभग 12 पुरुष थे। And they grew to a big church now. और फिर वहां से वो बढ़ने लगे। And if you continue to read Acts there, you later find that Paul comes back there in Ephesus. और अगर आप प्रेरित के कार्य को पढ़ते जाएंगे आगे फिर आपको पता चल जाएगा कि पौलुस जो है वापस एफिसस पहुंच जाते हैं। Almost near to Ephesus, and he calls the elders of the church. और फिर उस एफिसस कलीसिया को के जो धर्मवृद्ध है उनको बुलाते हैं। So by the time there were leaders in the church, the church is grown and established. तो तब तक क्या हुआ
उन 12 लोग से कलीसिया आप बढ़ने लगे, कलीसिया में अगुआ खड़े हो गए, धर्मवृद्ध खड़े हो गए, कलीसिया जो है सिद्ध हो गए। So now he is writing a teaching to the people in Ephesus. आप पौलुस जो है एक कुछ सिखा रहे हैं उन्हें इस पत्र के द्वारा। Okay, and when verse 22 in chapter 1 of Ephesus, we find that the first thing I want to tell you from here is that everything is under the feet of तो Jesus. जब हम वापस आते इफिसियों के पहला अध्याय 22वां वचन में, सबसे पहली बात हमें जानना है कि सब कुछ यीशु मसीह के पांव के तले है। And it says there, and God placed all things under his feet. और लिखा है 22वां वचन में कि और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। Jesus have authority over everything. यीशु मसीह का अधिकार है सब चीजों के ऊपर। Everything is under the feet of Jesus. सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले है। What are these things? लेकिन ये सब कुछ क्या है? Verse 21 if you read. अगर आप 21वां वचन देखिए, one verse before that, एक वचन उसके पहले, it says far above all rule, authority, power, dominion, every title that can be given, not only in the present age but also in the one to come. और लिखा है इस प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। And it says all this is under the feet of Jesus. और लिखा है कि ये सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले है। It says every principality. यहाँ पे लिखा है कि हर प्रधान था। And that means every rule. उसका मतलब है हर अधिकार, हर राज्य। And in those days, Ephesus was under the control of Roman king. उस समय में एफिसियो ये शहर जो है रोमियो राजा के अंदर थे। There was a government there. वहाँ पे एक सरकार थी। And Paul is here saying that this kingdom, this king and this government is under the feet of Jesus. और वहाँ पे पौलुस कह रहा है कि ये जो राज्य है, जो सरकार है, वो भी यीशु मसीह के पांव तले है। And the next thing is after principality is the power and authority. फिर लिखा है अधिकार और सामर्थ। And there was a court there was a judiciary there. वहाँ पे कोर्ट था, न्यायाधीश था, वो सब थे वहाँ पे। And he is saying all the authority, even the court and the judiciary is under the feet of Jesus. और यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि हर अधिकार, हर न्यायाधीश, हर न्याय करने वाला अधिकार, सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले है। And then he talks about the might and power. फिर वो बात करता है सामर्थ के बारे में, प्रभुता के बारे में। If you see around us, we know that there are different groups of people who have authority and power. हाँ, अगर आप देखेंगे तो अलग अलग लोग हैं जिसके पास अधिकार है। And police and different departments, they have authority. जैसे कि पुलिस है, अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसके पास अधिकार है, सामर्थ है। And even that is under the feet of Jesus. और वो भी यीशु मसीह के पांव तले है। And then he talks about dominion. फिर बात करते हैं प्रभुता के बारे में। There are different spiritual dominion. आत्मिक अधिकार है, अलग अलग आत्मिक अधिकार है। There are evil powers. जो शैतानी शक्ति भी है। And we say even the sickness that we see around. जो बीमारी हम देखते हैं वो भी। even the COVID. जो कोविड है। different bondages. अलग अलग बंधन। And even all this dominion, Jesus have authority. इन सब के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। Hallelujah. Hallelujah. Jesus has authority over all things. यीशु मसीह का अधिकार है हर चीज के ऊपर। Matthew chapter 28 verse 18, Jesus said, all authority in heaven and earth is given to me. मत्ती का 28वां अध्याय और 18वां वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि सारा अधिकार मुझे दिया है। And therefore you go. और इस कारण तुम जाओ। So all authority is in the hands of Jesus. तो सब अधिकार जो है यीशु मसीह के हाथों में है। And when we go in the name of Jesus, और जब हम यीशु मसीह के नाम में जाते हैं, there can be healing, there can be deliverance, there can be salvation, there can be forgiveness.
चंगाई होती है, छुटकारा होता है, पापों का क्षमा होता है यीशु मसीह के नाम में। As we go in the name of Jesus. जब हम यीशु मसीह के नाम में जाते हैं, So when you take the name of Jesus, you have authority over all these तो things. जब आप यीशु मसीह के नाम लेते हो, आपको भी अधिकार मिलता है इन सब चीजों के ऊपर। In Isaiah 66 verse 1 says, यशायाह के 66 का पहला अध्याय में अगर आप आएंगे, it says this, heaven is, let's read that. It आइए says, हम देखें यशायाह का 66 का Verse 1. पहला वचन। it says that heaven is his throne, earth is his footstool. यहाँ पे लिखा है आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरण की चौकी है, चरणों की चौकी है। It says, heaven is God's throne. और लिखा है यहाँ पे कि आकाश परमेश्वर का सिंहासन है And earth is his footstool. What is और footstool? पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। इसका मतलब क्या है? What is footstool? चरणों की चौकी क्या होता है? And a footstool is a small stool. इसका मतलब है छोटा सा स्टूल रहता है, अगर आपने देखा होगा। It's a small stand kind of जैसे thing छोटा सा स्टैंड है, where the king used to put his leg. जहाँ पे अगर आप देखेंगे पुराने जमाने के राजा महाराजा जो है अपने पैर रखते थे थोड़ा आराम लेने के लिए। छोटा सा हमेशा रहता था उनके सिंहासन की बाजू में। So it's like the king is sitting on the throne जैसे कि वो सिंहासन के ऊपर उस महाराजा बैठ गए हैं and his feet is on this small stool. और उनके पैर जो है छोटे से स्टूल के ऊपर है। And that is how God is. That is how Jesus is seated. और यीशु मसीह भी वैसे ही बैठे हैं। He is seated on the throne and the earth is his footstool. वो उस सिंहासन पे विराजमान है और पृथ्वी जो है उनकी चरण रखने की जगह है या चरणों की चौकी है। And what does it mean? It means that Jesus have authority over everything on the earth. इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह का अधिकार है सब चीजों के ऊपर जो इस पृथ्वी पे है। Hallelujah. हालेलुया। And it says over everything for the church. लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है इफिसियों में कि सब चीजों के ऊपर उनका अधिकार है कलीसिया के लिए। Appointed to be the head. Jesus is appointed to be the head of everything. यीशु मसीह को नियुक्त किया है, हर चीज के ऊपर अधिकार दिया है, उसे शिरोमणि ठहराया है। So Jesus is the head of everything. तो यीशु मसीह हर चीज के ऊपर अधिकार है उनका, वो शिरोमणि है। And the next thing I want to tell you is now this authority is with the church. दूसरी बात जो मुझे आपको बताना है कि वो ये है कि अब ये जो अधिकार है ये कलीसिया के पास है। And verse 22, and towards the end of the verse 22 it says this authority is now given to the church. अगर आप 22वां वचन इफिसियों का पहला अध्याय 22वां वचन में देखेंगे तो आप देखेंगे उसके लास्ट वाला भाग में कि लिखा है कि ये कलीसिया को अब दे दिया है। This authority through Jesus is given to the church. ये जो अधिकार है वो यीशु मसीह के द्वारा अब कलीसिया को दे दिया गया है। Somebody said church is a sleeping giant. किसी ने ठीक ही कहा कि ये कलीसिया जो है वो सोता हुआ एक बड़ा सा दानव है। Okay, believers, we as believers, church is not building, but the church, the people of God, true believers are like a sleeping giant. They are big in God, but we are asleep. जो और ये लिखा है कोई इमारत के लिए नहीं या कोई संस्था के लिए नहीं, लेकिन कलीसिया के लिए। हम जो विश्वासी है परमेश्वर में मजबूत है, बड़े हैं, लेकिन हम सोए हुए। And now we are not active enough. हम कुछ कार्य नहीं करते। Okay, the power we have kept it and living with it. हम क्या करते हैं, वो सामर्थ को लेते हैं और सो जाते हैं, हमारे अंदर ऐसे दबा के रख देते हैं। And it is, my dear friends, I want to tell you, we don't need to succumb to the circumstances of life. और मुझे आपसे कहना है कि जो हमारी परिस्थिति है उसके सामने हमें हार नहीं माननी है। God has given you power and authority, you need to use it. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है और आपको उसका इस्तेमाल करना है। Mark chapter 16 verse 15 to 18. मार्कुस का 16वां अध्याय verse 15 to 18 read it. 15वां वचन से 18वां वचन हम देखेंगे। Mark chapter 16. मार्कुस का 16वां अध्याय। He said in verse 15 onwards, he said to them,
Go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes will be baptized, will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snake with their hands, and they drink deadly poison. It will not hurt them at all. They will place the hands on the sick people and they will get well. मार्कुस का 16वां अध्याय 15वां वचन से 18वां वचन हम देखेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी उनकी कुछ न हानि होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। Here it says, this is the authority that Jesus, God has given to the church, और that you यही and तो me. अधिकार है जो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। और कलीसिया मतलब कौन? आप और हम। It is important we take this for sharing the gospel. When you share the gospel, these things happens. जब हम सुसमाचार देंगे तब ये सारे चिन्ह चमत्कार होगा ही होगा। And that power is authority comes to you through Jesus Christ. और ये जो सामर्थ है, जो अधिकार है, आता है यीशु मसीह के द्वारा। And Bible says Jesus is the head of the body, the church. और लिखा है कि यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। Come with me to Ephesians chapter 5 verse 23. आइए मेरे साथ इफिसियों का 5वां अध्याय और 23वां वचन। It says Jesus is the husband is the head of the wife, just as Christ is the head of the church. इफिसियों का 5वां अध्याय और 23वां वचन में लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। So here, the scripture is comparing the husband wife as Jesus and the church. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता का तुलना किया गया है कलीसिया और यीशु मसीह के। Jesus is the head. यीशु मसीह सिर है। And the church, you and me, the church is the body of Christ. और आप और हम जो कलीसिया है वो उनका देह है। And I want to tell you, you and me are come out of Jesus. और आप और हम यीशु मसीह से ही निकले हैं। If you compare Adam and Eve, अगर आप आदम और हवा को देखते हो, Adam the first man, Eve the woman, first woman. आदम वो है जो पहला पुरुष था और हवा वो जो पहली स्त्री। So Adam is considered as a type of Christ. तो आदम जो है एक प्रकार के यीशु मसीह को दर्शाता है। And also Adam is like Bible says the second Adam. Christ is the second Adam. और शास्त्र में लिखा है कि यीशु मसीह दूसरा आदम है। And Eve is like a type of church. और हवा जो है एक प्रकार से कलीसिया है। And you know how Eve is made, the church is made. आपको याद है लिखा है शास्त्र में कि हवा को कैसे बनाया गया? God in Genesis chapter 2. अगर आप आएंगे हमारे साथ उत्पत्ति का 2रा अध्याय में and verse 21 and 22 और 21वां और 22वां वचन, it says, so the Lord caused man to fall into deep sleep, and while he was sleeping he took one of man's ribs and closed up the place with flesh. Then the God made woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. उत्पत्ति का 2रा अध्याय 21 और 22वां वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संती मांस भर दी, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया।
So God was very precisely made Eve from Adam. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो परमेश्वर ने स्त्री को बड़ी बारीकी से बड़ी अच्छी तरीके से आदम से बनाया। That is how God made church from Christ. वैसे ही कलीसिया भी यीशु मसीह से ही निकला है। You know, just like Eve came out and God made Adam to sleep और आदम को सुला दिया यहाँ पे, and took the rib and made Eve. और परमेश्वर ने उनका एक पसली निकाल के हवा को बना दिया। In the same way, वैसे ही and when God made Adam and Eve, God gave them dominion and power. और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तब परमेश्वर ने उन्हें अधिकार और सामर्थ भी दिया। But we know that when the sin came, they lost it. लेकिन हम जानते जब पाप आए तब उन्होंने ये सब खो दिया। But when we believe in Jesus, when the church comes out of Jesus, लेकिन जब कलीसिया पर यीशु मसीह से उत्पन्न होती है या बाहर आती है, God restoring those power and authority. परमेश्वर फिर से उस अधिकार और सामर्थ को पुनः स्थापित करता है। So even Jesus went through that sleep just like Adam. तो जैसे आदम सो गया वैसे यीशु मसीह भी एक प्रकार से सो गए थे। And when Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर मरे and he was buried, उन्हें गाड़ा गया, and Bible talks about death asleep, और शास्त्र में बताती है कि जो मृत्यु है एक प्रकार का नींद है, and Jesus went through that sleep, और यीशु मसीह भी उससे गुजरे, and he was buried, और उन्हें गाड़ा गया था, and on the third day he rose again. और तीसरे दिन वो फिर से जी उठे। And that short time of sleep or short time of burial of Jesus, और वो छोटा सा समय, वो कम समय था जब यीशु मसीह को गाड़ा गया था वहां पे। and my dear brothers, when we believe in this, that Jesus Christ died on the cross for our sins, and on the third day he was rose again from his grave. You are coming out of Jesus just like Eve came out of Adam. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम भी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उस क्रूस के ऊपर मरे, उन्हें गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठे, जैसे हवा को बनाया गया आदम के पसली से जब वो सो गए थे, वैसे ही हमें भी बनाया गया जब हम यीशु मसीह के उस कार्य पे विश्वास करते हैं। We are the believers, the church are the people who comes out of Christ. जो विश्वासी लोग हैं, जो कलीसिया है, हम मसीह से ही उत्पन्न होते हैं। Church cannot come out of anything else. हम और किसी चीज से उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। Some places the church have membership fee. If you are a member of the church, you are part of the church. कुछ कलीसिया ऐसे है जहाँ पे मेंबरशिप फी भरना पड़ता है और फिर आप मेंबर बन जाते हो, सदस्य बन जाते हो वहाँ पे। If you pay money, you become part of the church. अगर आप पैसे देते हो तो आप उस कलीसिया का सदस्य बन जाते हो या मेंबर बन जाते हो। Bible doesn't say about such things. शास्त्र हमें नहीं बताते इन सब बातों के बारे में। It's a spiritual thing. ये एक आत्मिक चीज है। It is the body of Christ. ये है यीशु मसीह का देह या शरीर। The church is the body of Christ and it is a spiritual thing. कलीसिया जो है यीशु मसीह का शरीर है, यीशु मसीह का देह है, और ये एक आत्मिक चीज है। It is not through membership fee or it is not through monthly fees. ये कोई मेंबरशिप फी दे के आप नहीं हासिल कर सकते हो या मंथली फी दे के आप हासिल नहीं कर सकते हो। Such things have nothing to do with Christ. ये यीशु मसीह से कुछ लेना देना ही नहीं है। But we need to be born of Jesus. लेकिन हमें यीशु मसीह से जन्मना है। And when you are born of Jesus, you became the part of this body of Jesus. और जब आपका जन्म यीशु मसीह से होता है तब आप इस शरीर या इस यीशु मसीह का भाग बन जाते हो। Jesus becomes the head and we all becomes the body of Christ. यीशु मसीह सिर है और हम सब यीशु मसीह का देह है। I want to tell you and you receive the authority and power
in your life. और मैं आपसे कहता हूं कि फिर उसके बाद आपको वो अधिकार और सामर्थ मिलता है आपके जीवन में, Because it is given to the church. क्योंकि वो दिया गया है कलीसिया को। And if you are not believed in Jesus, और अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है अब तक, and you are not become part of the body of और Jesus, आप यीशु मसीह का देह का भाग नहीं बने हो अब तक, today is the day for you. आज वो दिन है। Believe in Jesus, यीशु मसीह पर भरोसा रखो, विश्वास करो that He died on the cross for your sin. कि वो आपके पापों के लिए इस क्रूस के ऊपर मरे। You can become a child of God and you can become part of the body of आप Christ. यीशु मसीह आप परमेश्वर की संतान बन सकते हो और यीशु मसीह के देह के भाग बन सकते हो। And it is the third thing and the last thing I want to tell you is now we need to be connected to the people of God, that is the church, to receive God's power and authority. अब तीसरी बात, जो आखिरी बात है कि हमें कलीसिया से जुड़े रहना है, कलीसिया के लोगों से जुड़े रहना है, ताकि हम उस सामर्थ और उस अधिकार को स्वीकार करें। And if you want to be connected to God, it is important to connect to the church. अगर आपको परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, बने रहना है, तो बहुत जरूरी यह बात भी है कि आप कलीसिया से जुड़े रहो। You know, to connect to God or connect to church means to connect to the people of the church. इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर से जुड़े रहना या कलीसिया से जुड़े रहना? इसका मतलब यही है कि हम कलीसिया के लोगों के साथ जुड़े रहे, बने रहे। In Romans chapter 12 verse 4 and 5. आइए मेरे साथ रोमियो का 12वां अध्याय 4 और 5वां वचन। Romans chapter 12 verse 4 and 5. रोमियो का 12वां अध्याय 4 और 5वां वचन। You know, it says there, I'm sorry, verse 4. Cannot get just as each of us has one body with many members, and these members do not have the same function, so in Christ we who are many form one body, and each member belongs to each other. रोमियो का 12वां अध्याय 4 और 5वां वचन हम देख रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम है, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। So here it says the church, the body of Christ, means the people in the are equally or mutually connected. यहाँ पे लिखा है कि हम जो परमेश्वर यीशु का कलीसिया है, जो एक ही देह है और हम आपस में एक दूसरे के अंग है। See, there cannot be a Christian lonely. There cannot be any lonely Christian. ऐसा कोई मसीह हो ही नहीं सकता है जो अकेला है। You know, it is important. We all need to connect to the people of the church. बहुत जरूरी है कि हम सब कलीसिया से जुड़े रहे, बने रहे, कलीसिया के लोगों के साथ बने रहे। And I want to ask you, are you related to somebody in the church? मैं आपको ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप कलीसिया के लोगों से, कोई भी हो सकता है, लेकिन कलीसिया के लोगों से जुड़े हो या नहीं? The more you are connected to the body of the people of the church, the more you are connected to God. जितना और आप कलीसिया के लोगों के साथ एक हो जाते हो, जुड़ जाते हो, बने रहते हो, उतना ही अधिक आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हो। And how we do that? It is by practically we see that we part of the house church. और हम ये कैसे कर सकते हैं? हम घर सभा के भाग बन सकते हैं। We help one another. हम एक दूसरे की मदद करते हैं। We pray for one हम another. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। We encourage serving and encouraging हम one एक another. दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं। That is what it says. The remaining verses in Romans, there that portion says that these are the different gifts God is given. रोमियो के 12वां अध्याय में यही तो लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग वरदान दिया है। And when you exercise your gifting in serving others, you are being connected. और जब अपने वरदान को आप कार्य में डालते हो, तब आप एक दूसरे की सेवा करोगे। You know, calling somebody up, किसी को आप फोन करते हो, praying for somebody, उनके लिए प्रार्थना करते हो, and teaching from the word, और परमेश्वर के शास्त्र से जब आप सिखाते हो, leading, जब आप अगुवाई करते हो, you know,
I want to encourage you, be connected to God by relating to people in the मैं church. आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ बने रहो, जुड़े रहो, और हम ये सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं जब हम परमेश्वर की कलीसिया के साथ बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं। You know, some people say, you know, I am connected to the pastor. कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, देखो मैं तो पासवान के साथ मेरा रिश्ता है, बस बहुत है। You know, no, you need to be connected to the people in the church. नहीं, आपको रिश्ता बढ़ाना है, आपको एकता बनाए रखने कलीसिया के लोगों के साथ। You know, how many people pastor going to connect? पासवान कितने लोगों के साथ कनेक्ट करेगा? You know, it's important we connect to every and other people in the church. बहुत जरूरी है कि हम कलीसिया के लोगों के साथ मिले रहे, जुड़े रहे। You know, some people think that, you know, I and God, that is enough. कुछ लोग ये सोचते कि नहीं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मेरा विश्वास है, मेरा परमेश्वर है और वो काफी है। And I have God channel. और मेरे पास गॉड टीवी भी है। Me, God channel, and songs, YouTube songs. और मेरा विश्वास गॉड टीवी है, प्रचार के लिए गाने हैं यूट्यूब पे, बस हो गए। Okay, that is not biblical. ये शास्त्र के अनुसार नहीं है। You know, this was like the olden days Catholic monks. You know how monks started, the priests started. They used to go to a desert and be alone. In the desert and sit on a pillar. अगर आप जानते हो कि शुरुआत में कैथोलिक कलीसिया में पादरी, ये सब उन लोगों ने पहले शुरुआत कार्य कैसे किया, ऐसे किया, उन लोग दूर जाते थे रेगिस्तान में, किसी जंगल में, किधर भी जाके अकेले एक बैठ जाते थे वहां पे और वहां पे मनन करते थे। You know, Bible doesn't talk about like लेकिन that. शास्त्र हमें ये सब नहीं बताती है, And it is not biblical. ये शास्त्र के अनुसार नहीं है। You know, recently a man of God fall into a major sin. हाल ही में एक परमेश्वर का व्यक्ति पाप में पड़ गए। You know, and it was exposed. Many people started talking about और it. फिर सबको पता चल गया, बहुत लोग बातें करने लगे। You know, and recently he died. और फिर उनका मृत्यु हो गया। Okay, and what happened is, you know, this whole thing came out. और फिर ये खुलासा हुआ इसका। And one thing they found out is this. और जब वो बातें कर रहे थे तब लोगों ने ये देखा कि this person never connected to a church. कि He was ये- not part of a church. हाँ, ये परमेश्वर का भक्त था, प्रचार करता था सब कुछ, लेकिन किसी भी कलीसिया का भाग नहीं था, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं था किसी कलीसिया के साथ। And he was not accountable to anybody or any person in the church. और कलीसिया में ऐसा कोई भी नहीं था जो उनके जीवन के बारे में कुछ जानता था, प्रश्न पूछना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था उसका कलीसिया के साथ। You know, so it can be very dangerous if you are not connected to people in the church. We don't have good friends in the church. तो बहुत खतरनाक हो सकता है अगर आपका कलीसिया में किसी के साथ रिश्ता या आप कलीसिया के साथ जुड़े ही नहीं हो, तो बहुत खतरनाक हो सकता है अगर आपका कोई दोस्त या मित्र नहीं है कलीसिया में, ये खतरनाक हो सकता है। You know, now we are living in the COVID times. अब हम कोविड के समय में, ये महामारी के समय में जी रहे We are हैं। all scattered in different places. हम अलग अलग जगहों में हैं। Now many other times we are alone. बहुत समय हम अकेलेपन महसूस करते But I हैं। want to tell you, it is very important, my dear brothers and sisters, we need to make an effort to connect to one another, to link to one another as the body of Christ. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें कोशिश करना है, कदम उठाना है ताकि हम कलीसिया से जुड़े रहे, एक दूसरे के साथ हम जुड़े रहे, बने रहे, हमारा रिश्ता बरकरार रहे। You know, there are some people, we don't know where they are, what they are doing. ऐसे You know, बहुत- just find out how they are, give them a call ऐसे and बहुत encourage सारे them. लोग हैं कलीसिया में और कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ पे है, क्या चल रहा है उनके जीवन में, किस हाल में है। उन्हें फोन करो, पता करो कैसे है, पूछो भाई तू कैसा है, प्रार्थना करो उसके लिए। You know, be part of the house church. बहुत जरूरी है कि हम कलीसिया से जुड़े रहे और अपने घर सभा खास करके उससे जुड़े You रहे। know, that is a small group. We all know one another. वो छोटा समूह है, हम एक दूसरे को जान पाएंगे उसमें। And if somebody is some need, be able to help them और अगर किसी के कोई जरूरत है तो उनकी मदद भी कर पाएंगे। and be part of it. भाग रहो,
जुड़े रहो। In conclusion, I want to tell you, अंत में मैं कहना चाहूंगा, Jesus has all the authority. यीशु मसीह के पास सब अधिकार है And through Jesus, you and me have that authority. और यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे वो अधिकार दिया गया है And we are born of Christ, और हम यीशु मसीह से जन्मे हैं, just like Eve came out of Adam. जैसे ही हवा जो है आदम से बनी। Now you cannot be part of, you see, something which not come out of Christ cannot be part of Christ. देखिए, जो मसीह का नहीं है वो उसका भाग कभी नहीं बन सकता है। If you want to be a bride of Christ, first you want to become out of Christ. अगर आपको यीशु मसीह का दुल्हन बनना है, कलीसिया है, तो वो तो यीशु मसीह से ही निकली है, उत्पन्न हुई है। Okay, and now the power which is lost through sin is restored to us through Jesus. और जो अधिकार हमने खो दिया था पाप के कारण, वो यीशु मसीह ने हमें वो लौटा दिया है। And it is important that we should be connected to the people of church, so that we can exercise the God-given power and authority. और इस कारण हमें बहुत बहुत जरूरी है कि हम कलीसिया से जुड़े रहे, बने रहे, ताकि वो अधिकार और जो सामर्थ जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है उसे हम कार्य में डाल सकते हैं। God bless you. परमेश्वर हर एक को आशीष दे।